Morning children. Today let us continue the same thing, that is the operation of. Okay. After this we will go to equivalent fractions. Children, the of operation, now it must be very clear to you. So let us first come to the question. The question is, make patterns in the grid with 2/8 blue, half yellow and 1/4 green. So you have got a grid. This is called a grid, children. This is 4/4 grid. That means towards the length you have 4 and towards the breadth you have 4. Okay. So total how many are there? There are 4 into 4, 16 squares in this. Right? And the question is, you have to color 2/8 blue. So children, earlier also I told you there is nothing called 2/8. 2/8 अकेले नहीं हो सकता. हम कभी भी नहीं बोल सकते 2/8. You have to tell 2/8 of what? 2/8 of what? तो हमारे यहाँ क्वेश्चन जब हम पूछेंगे 2/8 of what, क्या आएगा? यहाँ पर जितने ग्रिड्स है, ग्रिड में जितने स्क्वायर्स है, that will come as of. So 2/8 ब्लू करने के लिए बोला है, तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा? It is 2/8 of क्या? 2/8 of 16. ये 16 मुझे कहाँ मिला? मैंने काउंट कर लिया है यहाँ पर मेरे कितने स्क्वायर्स हैं. Okay? Now 2/8 of 16. This operation children now you know how to do. It is 2/8 of के जगह में into फिर 16. Okay? You can multiply the numerators 2 and 16. 32 by 8. 32 divided by 8 is 4. So 4 what will I color? 4 I will color with blue. So what will I do? I will take any 4 of my choice. इनमें से कोई भी 4 मैं blue कर सकती हूँ. So what I will do? I will take these blue. Okay? So blue, blue, blue. You have to color, children. I am doing it fast, so I have just written it blue. You have to color it nicely. Okay? Then the next is half as yellow. So half. Again ये question आ गया. Fraction अकेले नहीं हो सकता. Fraction के साथ of लिखना पड़ेगा. Half of what? Half of what means half of 16. So half of 16 is again half into 16, children. 1 into 16 is 16. 16 divided by 2. You can also cancel and do 16 divided by 2 is 8. So 8 will go for yellow. So I have to color 8 yellow. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. I have to color yellow. Now comes the green part. So 1/4 green. So I have to write here 1/4 of again. किसका? कितने सारे हैं मेरे पास? 16. So it is 1/4 into 16. So 1/4. So 16 ones are 16. It is 16/4. So I will get the answer as 4. And 4 what will I write? 4 will be for green color. So what I have to do? I will have to color the squares, the 4 squares in green. Okay? So this is how we do. Now children, come to the next one. ये off का ही थोड़ा अलग लेवल वाला है. So let us see. Suppose children, ये समझ लो कि मेरे पास ये जो ऊपर वाला स्ट्रिप है, ओके, ऊपर वाला जो स्ट्रिप है, ये एक मेरे पास एक चॉकलेट का पीस है, राइट? So this is a piece of chocolate. So what happened? 2 of you have come to me. आप में से 2 लोग आए, तो मैं इसका क्या करूँगी? I will have to make it half, है ना? एक पूरा को मुझे हाफ करना पड़ेगा. So what will I do? I will give one of you half. उसको मैं तोड़ दूंगी और एक को मैं हाफ दूंगी. तो दोनों को कितने मिले? You have got half. एक चॉकलेट मेरे पास पूरा था, मैंने उसको हाफ कर दिया. So one of you will get half and the other one will get half. Okay? Now what happened? No? As soon as I gave you, 2 more came. So now you are 4 children. अभी 4 बच्चे आ गए, तो अब मैं क्या करूँ? ऑलरेडी मेरे पास हाफ मैंने हाथ में तोड़ के रखा है. ओके? और जैसे ही मैंने 2 को देखा, मैंने क्या किया? जो मेरे पास ऑलरेडी हाफ था, उस हाफ को मैंने फिर से हाफ कर दिया, है ना? क्योंकि मुझे तो देना है सभी को, चारों को. सो मैंने क्या किया? हाफ का फिर से हाफ कर दिया. You remember this, okay?
हाफ का फिर से हाफ हाफ कर दिया. दैट मीन्स ऑल द 4 विल गेट हाउ मच? दे विल गेट हाफ ऑफ हाफ. जो ऑलरेडी हाफ था उसका और हाफ होने करके मिला उनको, है ना? आई थिंक इट इज क्लियर. ये आधा जो था उसको फिर से हाफ हाफ कर दिया. सो all of you will get how much? Half of half. And half of half is half into half. Numerator into numerator 1. Denominator into denominator 4. Okay? यानी half of half कितना है? 1/4 है. ये तो देखकर भी पता चल रहा है 1/4 है. चार भाग हो गए और हर बच्चे को कितना मिलेगा? एक भाग. सो इट विल बी 1/4. अगर 2 ही बच्चे तुम लोग होते तो हाफ हाफ मिलता, क्योंकि अभी 4 चिल्ड्रन हो गए. सो ईच वन ऑफ यू विल गेट 1/4. ओके. सो 1/4 कितने सारे हैं? 1 2 3 4. 1/4 1/4 1/4 1/4. 4 1/4 मिलकर क्या हो जाता है? 1. अगर मैं ये चारों पीस आप लोगों से ले लूं, लेने से मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा ओरिजिनल चॉकलेट मुझे मिल जाएगा, है ना? आई विल गेट द होल. सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 विल गिव मी द होल चॉकलेट, राइट? अब जब मैंने ये 4 पीसेस कर दिए तो मैंने देखा कि और 4 चिल्ड्रन आ गए. ओके. नाउ 4 मोर हैव कम. सो टुगेदर नाउ आई हैव 8 चिल्ड्रन. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो हाफ है इसको फिर तोड़ना पड़ेगा. ये मेरे पास हाफ था तो मैंने इसको और हाफ कर दिया. ओके. देन आई हैव इवन, इसको भी मुझे हाफ कर देना पड़ा. फिर ये जो हाफ था इसको भी हाफ करना पड़ा, बिकॉज नाउ आई हैव 8 चिल्ड्रन. सो द होल चॉकलेट आई हैव डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. सो चिल्ड्रन, नाउ आई हैव 8 पार्ट्स ऑफ द सेम चॉकलेट. जो मेरे पास एक था वही हो गया अभी 8 पार्ट्स में. सो नाउ 8 बच्चों में मैंने इसको बांट दिया. ओके, राइट. सो सी, जो मेरे पास 1/4 था, ओरिजिनली जो 1/4 था, उस 1/4 को मैंने हाफ किया. सो इट इज हाफ ऑफ 1/4. इट इज हाफ इंटू 1/4. दिस इज 1/8, है ना? 8 पीसेस में बच्चों को मिला है. दैट मीन्स हर बच्चे को कितना मिला? 1/8. अगर मैं ये 1/8 पीसेस में आपसे ले लूं, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 ले लूं, तो वापस मुझे मेरा चॉकलेट मिल जाएगा. इज इट क्लियर? सी चिल्ड्रन, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू आर लर्निंग. एक ही बार में हो सकता है फटाक से समझ में ना आए, बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी. ओके. हम रियल लाइफ में इस तरह का काम करते हैं. डिवीजन जब करते हैं, घर में भी कोई सामान आता है तो डिवाइड जब करते हैं, इस तरह का काम हम करते हैं. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 1/4? कितने सारे 1/4? तो मुझे कहाँ जाना है? मेरे यहाँ पर जाना है 1/4. तो मेरा ये 1/4 था. 1/4 1/4 1/4 1/4. हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ? कितने सारे 1/4 मिलने से एक हाफ आता है? तो मेरा हाफ कौन सा है? ये देखो, ये ग्रीन पोर्शन मेरा हाफ है. तो कितना सारा 1/4 मिलने से ये मुझे ग्रीन पार्ट मिला? 2, है ना? 2 1/4 मेक्स अ हाफ. This 2 1/4 will make this half. So what will be my answer? 2. 2 1/4 मिलने से एक हाफ होता है. How many 1/8 will make a 1/4? तो ये 1/4 मेरा कितना पोर्शन है? ये 1/4 है, ठीक है? ये 1/4 बनने के लिए कितने सारे 1/8 चाहिए? ये एक 1/8, ये एक 1/8, ये दोनों 1/8 मिलने से कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा. यहाँ भी आंसर 2 है. Okay, please see the video once again if you don't understand. This question is not very easy. Okay, now the second, come to the third one. How many 1/8 are in half? हाफ में कितने 1/8 है? हाफ मेरा कौन सा है? ये वाला चॉकलेट का पीस मेरा हाफ था, ग्रीन वाला. इसमें कितने 1/8 है? हाउ मेनी 1/8 आर देयर? तो 1/8 के लिए मुझे कहाँ जाना? मेरे पर्पल कलर में. तो इतना जो भाग है इसमें कितने पर्पल कलर्स आएंगे? 1 2 3 4. Okay, so how many purple colors are there in one green?
there are 4 purple colors, and this 4 purple colors का मतलब कितना है? 1/8, right? So how many 1/8 are there in this half? There are 4 1/8. Okay, so children, वहां से हम एक नया चीज आज सीख रहे हैं, that is this multiplication. ये हमारा ऊपर वाला जो multiplication था ये हमने 4 में भी किया था. Now this one is fraction into fraction. This one was fraction into a whole number. ये fraction था लेकिन ये whole number था, right? And now this one is fraction into fraction. So see here, half of half, ये मुझे निकालना है. Process वही है. It is half of के जगह में into, half into half is equal to 1/4. 1 into 1, 1, 2 into 2, 4, right? Now come to B1, 1/3 of 3/4. It is 1/3 into 3/4. यहाँ मैंने कैंसिल करके किया है. कैंसिल करते हैं चिल्ड्रन ओनली विथ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये दोनों में ही कैंसिल होता है. ओके, सेम साइड कैंसिलेशन नहीं होता. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कैंसिल, डोंट डू दैट. ओके, यू मल्टीप्लाई एंड राइट. सो मैंने कैंसिल किया है ये वाला. सो इट इज 1 3 कैंसिल किया, 1 यहाँ बचा और यहाँ 4. सी हियर चिल्ड्रन, आई हैव नॉट कैंसल दिस वन. ये आंसर भी करेक्ट है. ओके, 2/5 into 10/12, 2 into 10 is 20, 5 into 12 is 60. You can keep your answer like this also. अभी इसको कैंसिल करके नहीं लिखने से भी क्लास 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can write like this. And for this one, you see, जो कैंसिल करना चाहे वो 3 और 3 कैंसिल कर सकता है, उसको 2/5 आंसर मिलेगा. अगर बिना कैंसिल किए लिखोगे, it is 3 into 2 6 and 5 into 3 15. If you write like this also children, the answer is correct. Okay. Now children, come to a very important part. This one also we have studied, the equivalent fractions. Now children, here you see I have a grid again, 4 into 4 grid, which I have already colored. Okay, now you have to tell me the fraction कि मैंने इसमें कितने कलर किए हैं. ये अलग अलग लोगों के दिमाग में ये अलग अलग तरह से जाएगा. ओके, if I count the orange ones, 1 2 3 4 5 6 7 8, total 16 है. I have colored 8 out of 16. ओके, लेकिन किसी के दिमाग में ये भी जा सकता है कि ये तो 16 था और कलर्ड है 8, यानी हाफ कलर्ड है, राइट? You can also say it as half. Both the answers are correct. हाफ जो बोल रहा है वो भी करेक्ट है, 8/16 जो बोल रहा है वो भी करेक्ट है. अब करेक्ट क्यों है चिल्ड्रन? यू सी द नंबर्स आर डिफरेंट. दोनों के न्यूमरेटर्स अलग अलग हैं. 1, इसका क्या है 8, इसका है 2 और इसका कितना है 16, राइट? सो सच फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू, यानी इनका जो मीनिंग है ये एक ही है, लेकिन न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है. ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. दैट मीन्स दे हैव द सेम मीनिंग बट द न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट and the denominators are different. I will show you some examples children. Okay, now you see children, I have some tamarind seeds. ये tamarind के seed हैं. हाँ, let me count first. 4 4 8 and 12. I have 12 tamarind seeds, right? And first let me start with 4. Okay, this is 4 and I have 2 children. I have to give them. So one child I gave 2 and the other child I gave 2. इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अगर मैं यहाँ लिखूं, what can I write? I can write this as half, right? इसको भी हाफ मिला, इसको भी हाफ मिला. तुम लोगों में से कुछ ये भी बोल सकते हो कि 2/4 मिला. ये भी सही है, because 4 था उसमें से 2 मिल गया. Okay, now let me take 6 children. I have taken 6 tamarind seeds. Okay, this time I am going to give one of them 3 and one of them 3. इस बार भी तुम लोगों में से किसी के दिमाग में यह आएगा कि हाफ हाफ दिया है, then also it is correct. Okay,
Otherwise you can also write this as 3 by 6. 6 था, 3 दे दिया, so 3 by 6, 3 by 6, right? Suppose I have 8 of them. So 8 of them, and I have given 4 I have given. So I can also write this as half or 4 by 8. Now children, you see in all these cases, इन सब में एक आंसर कॉमन था. कौन? हाफ. हर जगह में हाफ कॉमन था. यानी ये जो सभी नंबर्स हैं ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स दे ऑल मीन द सेम, मीनिंग एक ही है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? दैट मीन्स हाफ इज इक्वल टू 2 by 4 इज इक्वल टू 3 by 6 इज इक्वल टू 4 by 8. अगर मेरे पास सपोज 800 टैमरिन सीड्स होते तो ऊपर न्यूमरेटर कितना आता? अगर मैंने हाफ दिया, सो इट विल बी 400. ओके, नाउ यू सी चिल्ड्रन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते कैसे हैं? फ्रॉम द नंबर. नाउ यू सी चिल्ड्रन, आई विल राइट अनदर, से 1 by 3. हाफ तो मैंने दिखा दिया. ओके, नाउ दिस टाइम आई एम डूइंग विथ 1 by 3. What is my numerator? My numerator is 1. And what is my denominator? Denominator is 3. Okay, numerator और denominator को भाई बहन समझ लो. Okay, और घर में कोई सामान आ गया, चॉकलेट आ गया या चिप्स आ गया, तो क्या करते हैं? भाई और बहन दोनों को बराबर देना है ना? You have to give the same, otherwise लड़ाई हो जाएगी. So ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल भी कुछ ऐसा है कि नीचे वाले को जो नंबर दोगे, ये 4 में भी पढ़ा था, सो मैंने नीचे वाले को क्या दिया? 2. तो उसके भाई को भी कितना देना है? 2. क्लियर? सो वॉट एवर नंबर यू मल्टीप्लाई विथ द डिनोमिनेटर, with the same number you have to multiply the numerator. So 1 into 2 is 2 and 3 into 2 is 6. Okay, you can do this with any number. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 2 लिया. I can take any number of my choice. बड़े numbers भी ले सकती हूँ. So let me take this time let me take, so it is 1 by 3, ऊपर नीचे same number से multiply करना है. So this time let me take 10. Any number you can take, any big number, small number. Okay, so 3 into 10. So naturally भाई को भी क्या देना है? 10. So 1 into 10 is 10 and 3 into 10 is 30. राइट? यहाँ देखो मुझे 1 by 3 क्या मिला? 2 by 6. और यहाँ 1 by 3 कितना मिला? 10 by 30. यानी 1 by 3 is equal to 2 by 6. It is also equal to 10 by 30. Is it clear? Now suppose children, I have 3 tamarind seeds. एक एक तीनों को दे दिया, तो 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. Right? If I have 6 tamarind seeds, 2 करके दे दिया, so 2 by 3, 2 by 6, 2 by 6, 2 by 6, because total कितना था? 6. 2 दे दिया, 2 by 6, 2 by 6, 2 by 6. Now if I have 9 in all, how much will I give? 3. 3, 3, 3. So 3 by 9, 3 by 9, 3 by 9. यानी ये 3 by 9 के भी बराबर है. Okay, now I have 3 more. So one of you I will give 4, one of you I will give 4, one of you I will give 4. This time it is 4 by 12. Total 12 था और 4 दे दिया. So 4 by 12. See, 1 by 3 is also equal to 2 by 6, is also equal to 3, 10 by 30, is also equal to 3 by 9, is also equal to 4 by 12. Okay, so these are equivalent fractions. Equal नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन अगर मीनिंग समझो तो ये बिल्कुल एक है. आई थिंक चिल्ड्रन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा. चिल्ड्रन दिस पार्ट, यू नो, दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला पार्ट इज you will learn in higher classes also when you go to 6, 7 also, and by that time it will become more clear. Okay, ये शुरुआत है, इसीलिए all of a sudden ये करना थोड़ा मुश्किल है, but you will understand it slowly. Okay, in this one sometimes you get questions like this. For example, see 1 by 2, and here you will be given say 10.
ओके, और यहाँ बॉक्स दे दिया, ये बॉक्स तुम्हें फिल करना है। तो कैसे फिल करें? इट इज फिल करने का तरीका ये है कि मुझे देखना है कि 2 को क्या दिया तो 10 हुआ। I can do it mentally, right? What did I give to 2 to make it 10? I have given 5, यानी दीदी को मैंने 5 दिया है, I have given her 5, इसीलिए वो 10 बन गई। तो भाई को भी कितना मुझे देना है? I have to give him also 5, so 1 into 5, 5. Is it clear? अगर पूरा if you don't have, if you cannot do this mentally, what you do? You do in the side. 1/2 यहाँ लिखो और देखो 10 बनाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को क्या दिया? 5 दिया है, तभी तो 10 बना। 2 into 5 10. So what shall I give to the numerator? नीचे वाले को 5 दिया तो obviously ऊपर वाले को भी 5 देना है। So 2/5 is 10 is given and 1 into 5 is 5. Clear? ये उल्टा भी आ सकता है। Say I am given 2/3, okay, and here I am writing 16, and here there is a fill in the blanks. So what will I do? I will write 2/3 here, okay, and then मुझे देखना है कि 16 बनने के लिए 2 को क्या देना है। So I will have to say that table of 2. अब multiplication table clear होना चाहिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16. 2 को 8 मैंने दिया तब वो 16 बना। So 3 को भी मुझे क्या देना पड़ेगा? I have to give her also 8. So 3 into 8 is 24. Here my answer will be 24. Children, these are all equivalent fractions, okay? I think you might have got some idea at least, okay? When we do more sums, it will be clear to you. Thank you.